Recording in progress. Thank you, Ashutosh. It's good to finally hear of teachers, as we are to be called eminent for something which we have done as a vocation, as a mission, and been a school teacher all our life. So that's kind of validation for any teacher, especially in a country like ours. On behalf of the Shri Badrika Ashram Emerging Youth Scholarship and Mentorship Scheme and Sid Beads College Shimla, who's co-hosting this event with us, I welcome all of you to this webinar where in education, careers in education, where we plan to throw some light and share some guidelines and tips for all the aspiring teachers who are here with us today. Some of you have already committed yourself to being teachers, जो लोग DLED कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, कई aspirations रखते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो BA कर रहे हैं, and you're aspiring teachers. So welcome to all of you, and we hope to cover all aspects of teaching. And I will begin with a very small video, which kinds of puts everything into perspective, because teaching is known as a job, it's a profession, it's a vocation, and it's already a mission. Somebody has raised their hand. If there's a problem before we begin, yeah, please could you tell me what it is? Ankita? May I go ahead? All right, so if there are also, may I just tell you that if there are any questions and answers, you can save it to the end. And Ankita, अगर आपने वैसे ही हाथ खड़ा किया, please आप chat box में डाल दीजिए, नहीं तो मैं wait करती रहूंगी आपकी कि आपका हाथ नीचे जाए. Thank you. So there's this very inspiring video that I wanted to share with you right in the beginning. How did my child get into their dream university? All thanks to insightful nights with their crimson teams. And the winner of the Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. So give me a minute and I will return back to my presentation. Yeah. Can you see my presentation? Praveenji, you give me a thumbs up so that I know it's on the right track, please. Somebody? We can still see the YouTube. All right. So I'll stop sharing for a minute and go back to sharing the screen once again. Sorry for that. Yeah. Can you see the presentation, please? Yes. Yeah. So, this is a favorite quote of mine: a teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops. Ranjit Singh's story is one of the ways that teachers influence social impact, the kind of work that Praveenji does. All right, ye ek hai, where we ensure that in a country like ours, no child is left behind. और एक impact है जो हम सब we make in classes.
Research says that every teacher in his or her career impacts about 3,000 children, which is a lot considering one set of parents impact 3 or 4 children. That is the reach of the impact that a teacher has. And imagine कि जो टीचर कहती है, बच्चे एक तो बहुत ही impressionable age पे समाज, सरकार और पेरेंट्स बच्चे एक टीचर के सपोर्ट करते हैं. टीचर जो कहती है उसको समाज, सरकार और पेरेंट्स एंडोर्स भी करते हैं. और सबसे इम्प्रेशनेबल एज में वो पेरेंट्स बच्चे आपके किसी भी टीचर के हाथ में देते हैं. So that is the impact that a teacher has on the future citizens of the country. And hence a teacher, they say, shapes not just the few children, a teacher shapes the nation, the society as a whole. Now, my learning I'm going to share with you today through my story. But before that, I would still like to share with you in context with Ranjit Singh Desale that what is the impact that a teacher has, what is the extent of her influence. We have these days influencers, social media पे हमारे TikTok के influencers होते हैं. India में तो of course हमारे film stars सबसे बड़े influencers होते हैं. But teachers are the original influencers. बच्चे शुरू से ही टीचर्स को देखकर बड़े होते हैं. आप लोगों में से कईयों के पास ऐसी कहानियां होगी जब आप लिखने का तरीका एक टीचर का फॉलो करना चाहते थे, आप टीचर के चलने का तरीका फॉलो करना चाहते थे, वो बात कैसे करती हैं, वो एक कैसे बनाती हैं, उनके हाव भाव. We liked to follow our teachers. They influenced us mostly outside the parents. Even now, I will say that teachers offer stiff competition to influencers. They offer stiff competition to virtual reality, virtual influencers. Teachers are also role models. We want to grow up to be like them. Each one of you has a story of a teacher to tell where you wanted to grow up to be like a teacher. वो role model होती हैं. And इसीलिए शायद टीचर पे एक तरह की जिम्मेवारी होती है to be the best version of herself or himself. क्योंकि बच्चे उनको देख रहे होते हैं. मेरे गुरुओं में से एक टीचर थी सीनियर, वो हमेशा बताती थी कि चिल्ड्रन कैन ऑलवेज सी थ्रू यू. टीचर की बेस्ट जज जो होते हैं वो बच्चे, क्योंकि वो आपको अच्छे मूड में, बुरे मूड में, डे आफ्टर डे, जब आपकी तैयारी नहीं है क्लास में, जब आप परेशान हैं, जब आप गुस्सा करते हैं, बच्चे आपको देख रहे होते हैं. यू कैन नेवर ब्लफ स्टूडेंट्स. So it is again a responsibility, and teachers do turn out to be role models, because when the responsibility comes, our best behavior does show up. Teacher is also a counselor. Somehow parents, with parents, children don't confide so much. उनको लगता है parents दूसरी generation के, पर teachers जो है ना, वो बच्चों की ही भाषा बोलती है. हम लोग कहते हैं टीचर्स, जब मैं हम लोग कहती हूँ, मैं टीचर फ्रेटर्निटी की तरफ से बोल रही हूँ, हमेशा यंग रहते हैं. हमारी भाषा हमेशा यंग रहती है क्योंकि बच्चों के कांटेक्ट में रहते हैं. लेटेस्ट एप्स हम लोग को पता रहती हैं, तो बच्चों को लगता है कि ये हमारे ही जनरेशन के हैं. तो जब भी कोई, और हमारी प्रॉब्लम समझते हैं, तो जब भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, मैं 3rd 4th की भी बात कर रही हूँ और कॉलेज की भी बात कर रही हूँ, तो जो काउंसलिंग है उसके लिए वो टीचर को रीच आउट करते हैं. जब हमारे अब्यूज के केसेस होते हैं एंड इन आवर स्कूल एंड चिल्ड्रन रिपोर्ट, द फर्स्ट पर्सन मोस्टली दे टॉक अबाउट इज नॉट टू देयर पेरेंट्स, दे टॉक टू द टीचर्स, एंड देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट द टीचर विल काउंसल देम. द मेंटोर इज आल्सो अ टीचर. When I say mentor now, you will understand. आप लोग भी इसी जनरेशन के हैं. आप में से जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, टीचर का रोल चेंज हो रहा है. पहले क्या था कि टीचर यूज्ड टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन. मेरा काम था कि मैं जाकर के आपको इंफॉर्मेशन दूं बच्चों को. पर धीरे धीरे क्या हुआ, आप सभी इंफॉर्मेशन तो नेट पर है, किताबें सभी PDF पर हैं, आप किताबों में से पढ़ो. पर कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, कितना टाइम किताबों पे लगाना है, कितना टाइम सोशल मीडिया पे लगाना है, मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, ऐसे मेंटर्स की जरूरत अब बहुत बढ़ गई है. और टीचर्स वो रोल बहुत अच्छा निभाते हैं. मेंटर्स, फैसिलिटेटर्स, जो कि आपको गाइड करें, जो आपकी बच्चों की चॉइसेस मेक करने में आपको हेल्प करें. तो टीचर्स के
इम्पैक्ट की ही मैं बात कर रही हूँ। एंड बहुत एक जो अहम बात है, दे आर द कीपर्स ऑफ कोर वैल्यूज। कीपर्स ऑफ कोर वैल्यूज, हमारी कुछ कोर वैल्यूज होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन एक सोसाइटी की, और क्या सोसाइटी क्यों, कई ग्लोबल कोर वैल्यूज होती हैं, और उनके जो कीपर्स हैं, उनकी जो धरोहर है, उनकी जो वो जो परपेचुएट होती हैं, वो जो आगे बढ़ती हैं, वो स्कूल्स में ही होता है। वेरी सिंपल थिंग्स लाइक विश करना, है ना, गुड मॉर्निंग कहना, ये बहुत छोटी सी वैल्यू है, पर ये जनरेशन टू जनरेशन स्कूल्स में ही ट्रांसफर होती है। सच बोलने पे इंपॉर्टेंस देना, टाइम पे काम जमा करना, खड़े होना जब कोई कमरे में आए, ये कोर वैल्यूज होती हैं। और ये जो धरोहर है, ये स्कूल्स में ही आगे बढ़ती है। घरों में तो एक जनरेशन से दूसरी कितनी आगे बढ़ेगी, बट year after year we transfer these values to children, and that is why the impact on the society of teachers and schools is so much. And that is why when we talk of education, there is, like, you know, we talk of it beyond being a job and a profession. और अब तो हम ये भी नहीं शिकायत कर सकते कि it's not too well paying. अब तो पे कमीशन आ गई है, the government monitors, so that's a plus. Okay, so teaching, like I said, is rewarding and very, very fulfilling. I'll come to my journey. मैंने BSc किया था, ग्रेजुएशन, साधारण ग्रेजुएशन जिसको बोलेंगे, एंड उसके बाद B.Ed किया। उसके बाद मैं एक TGT, बतौर TGT एक कॉन्वेंट स्कूल में लगी, और बहुत एक टिपिकल ग्रोथ पैटर्न था, जो पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ, बट दिस इज नॉट दी ओनली ग्रोथ पैटर्न। इसके अलावा भी कहीं आड़े टेढ़े बहुत से रास्ते हैं, पर ये एक टिपिकल ग्रोथ पैटर्न है जो कि मेरा रहा। तो मैं इसी के इर्द गिर्द आपको बताऊंगी कि कैसा ये पैटर्न रहा, और ये दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोइंग इनटू getting a fulfilling career. I'll keep coming back to a fulfilling career because at the end of it, that is the aspect that I cherish most of it being a fulfilling career. तो TGT बनते हैं आप, PGT, फिर headmistress, फिर vice principal, and then I become eligible to be a principal now. जब जर्नी देखें, जो कि काफी कंटेम्पररी है, क्योंकि मैं करंटली भी इसी फील्ड में अभी भी नौकरी कर रही हूँ, ये जर्नी होता है अनलर्निंग का और लर्निंग का। अनलर्निंग मतलब जो भी हमारे माइंडसेट्स हैं, जो भी हमें बताया गया है, उससे हट के एक दोबारा अपना फ्रेश पर्सपेक्टिव बनाएं, एक अपने तरीके को पढ़ाने का अपना अपनाएं, और एवरी ईयर, एवरी मोमेंट वी कीप ग्रोइंग। टीचर का जर्नी एक टिपिकली लर्नर का जर्नी है। That is how I put the sum total of any career. शुरू में मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया तो ये कॉन्वेंट स्कूल था, ज्यादा कोई ब्रीफ नहीं थी, बस ये था कि एकदम स्ट्रिक्ट रहना है बच्चों के साथ और पढ़ाना है। तो जब मैं टीचर बनी तो मैं बिल्कुल वही करती थी, जैसे मुझे पढ़ाया गया था मैं वैसे ही पढ़ाती थी, which meant कि आप टीचर हैं, आपने देखना है कि बच्चों का बिल्कुल डिसिप्लिन सही से रहे और बातचीत ना करें बच्चे। एंड जो स्टीरियोटिपिकल हमारी एक टीचर की इमेज होती है कि ऐसे ही बन के रहना है, कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो वो एक टॉप डाउन अप्रोच होगी कि टीचर लाइट दिखाएगी, सब्जेक्ट पढ़ाएगी और बच्चे पढ़ेंगे। बट क्लासरूम में जाके मुझे कुछ और दिखाई दिया। एंड ऐसा है ना, टीचर को रियल टाइम फीडबैक मिलता है। एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको हाथों हाथ फीडबैक मिलता है, बच्चों के चेहरों से आपको फीडबैक मिल जाता है कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, आप इफेक्टिव हैं कि नहीं है, आपकी बात उनको समझ आ रही है कि नहीं। अगर बच्चे क्लास में बातें कर रहे हैं तो एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर लेसन, यू गॉट योर फीडबैक इमीडिएटली, दैट्स समथिंग यू नीड टू चेंज। प्लीज माइंड दैट्स समथिंग यू नीड टू चेंज, व्हिच मींस द टीचर नीड्स टू चेंज, not the student needs to change. So one of the first lessons I learned is that we have to teach students not the subject. Now what does that mean? ये जो भाषा है ये तो मॉडर्न भाषा है, पर जो लेसन था वो बहुत ऑर्गेनिक लेसन था। एक बच्चों को देखकर ही बात समझ में आ गई थी कि दो तरीके होते हैं। मैं जीवन में मैथ्स भी पढ़ाई, फिजिक्स भी पढ़ाई और इंग्लिश भी पढ़ाई।
मास्टर ऑफ नन एक्चुअली, कोई बात नहीं, फिर भी तो बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। जब आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो जैसे आप मैथ्स का उदाहरण लीजिए, आप गए, आप बोर्ड के पास गए, आपने थियोरम पढ़ाना शुरू किया, थियोरम पढ़ाना शुरू किया, आपने लेटर राइटिंग पढ़ाना शुरू किया। नाउ कट टू अ चेंज ऑफ लैंग्वेज, आपने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप ये देखते हैं कि अच्छा ये बच्चा कहाँ है, वी मीट द चाइल्ड वेयर द चाइल्ड इज। आप लॉन्ग डिवीजन पढ़ा रहे हैं पर बच्चे को टेबल्स ही नहीं आते। आप तो आए लॉन्ग डिवीजन पढ़ा करके चले गए एलिमेंट्री में, DLED टीचर से बात कर रही हूँ अभी कि आई विल ट्राई टू टच ऑल एस्पेक्ट्स, बट ये यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स एक्चुअली। तो आप लॉन्ग डिवीजन पढ़ा रहे हैं पर बच्चे को अगर टेबल्स ही नहीं आते, तो फिर हमें बच्चे को वहां जाके मिलना है जहाँ पे बच्चा है। सो दैट्स व्हाट आई मीन कि टॉपिक नहीं पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना। इसके बाद में आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो इतनी क्लैरिटी आ जाएगी एंड यू कम अवे फीलिंग वेरी इफेक्टिव। अनदर लेसन, इस स्कूल में 10 साल से ऊपर मैंने काम किया और प्योर क्लासरूम टीचिंग की, और उसमें से बहुत सारे I think we missed out a little bit. I will make sure from now on. So what's very important is that we have to be prepared always in class and be prepared with whatever material we have. Class में अगर हम एक बीकर भी लेकर के जाएंगे, बच्चे ये मानेंगे कि teacher like we are important और हमारी ये class important है. So these were some of the lessons I learned in over a decade of pure classroom teaching, no administration, physics and maths teaching. Then I moved to another school, जो कि एक बहुत बड़ा स्कूल था। एक गर्ल्स स्कूल से कोएड में गए। जब गर्ल्स स्कूल से आप कोएड में जाते हैं तो एक कल्चरल शिफ्ट आ जाता है, एक पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, नॉइज लेवल ही अलग होती है। आई डोंट मीन टू स्टीरियोटाइप एनीवन, बट दैट इज द फैक्ट। और ये बड़ा स्कूल था और बच्चे अलग इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आए थे एंड स्कूल का विजन अलग था। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों आप ही करियर में स्कूल्स बदलेंगे, हर स्कूल का कल्चर विजन अलग होता है। आप शायद एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाएं, आप एक तरह के स्कूल से, आप केंद्रीय विद्यालय से प्राइवेट स्कूल जाएं, आप गवर्नमेंट स्कूल जाएं, आपकी अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है और आप किसी भी टीचर का ग्रो करना बहुत जरूरी है। और एक्चुअली ग्रोथ हर बैच के साथ होती है, क्योंकि जो आपका क्लासरूम होता है वो समाज का ही एक सूक्ष्म रूप होता है, इट रिफ्लेक्ट सोसाइटी। तो बहुत एक एग्जाम्पल है, नेगेटिव कहिए या सच्चाई कहिए, जैसे आजकल कंप्यूटर्स पे इसमें ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो पेरेंट्स भी वर क्वाइट ओके कि बच्चे इधर उधर से देखकर कर रहे हैं, और जिसको हम चीटिंग कहते हैं या अनफेयर मीन्स कहते हैं। सोसाइटी में वो चीज थी, वही चीज क्लास में भी आई। जब टेक्नोलॉजी आई तो क्लास में भी आई, लिबरलिज्म आया, जब समाज में ये बात शुरू हुई कि क्यों बच्चों को 2 चोटियां ही बनानी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आपको समाज से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और उसके साथ अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। साल दर साल जैसे जैसे हालात बदलते हैं, समाज इवॉल्व होता है, बच्चों का प्रोफाइल बदलेगा, और ये बहुत जरूरी था। नहीं तो एक जो स्टीरियोटाइप टीचर्स होती हैं वो एक ही तरह के कपड़े 20 साल पहन के निकाल देती हैं और फिक्स्ड होती हैं इन टाइम। इवॉल्व करना जरूरी है हर बैच के साथ। जब नया नया टीचिंग जॉब शुरू किया, और आपको भी ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछेंगे जब आप टीचिंग चूज करेंगे कि टीचिंग बोरिंग हो जाता है, एक ही चैप्टर है, एक ही किताब है, इतना सिलेबस है, आप हर साल वही पढ़ाओगे, ये तो बहुत बोरिंग है, एक्साइटमेंट नहीं है, which is not like what I experienced। हर बैच के साथ एक नयापन आता है और हर बार आप वो चैप्टर पढ़ाते हैं, आपका ऐसा दिमाग चमकता है, ये चीज अब दूसरी तरह से पढ़ानी चाहिए। तो कभी भी अपने आप को री इन्वेंट करते रहिए, अडेप्टेबल रहिए। तो मुझे ये चीज सीखनी पड़ी, कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली, क्योंकि सक्सीड तो करना था, ऑप्शन नहीं था, अच्छा पढ़ाना था,
और जज्बा था कि इफेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट करूंगी क्लास में जाकर के। तो हालात ने ये चीज सिखाई कि अडेप्टेबल होना बहुत जरूरी है। एक और चीज कि इसी स्कूल में जहां मैं सेकेंड ऑप्शन में गई, यहीं पर एक्चुअल करियर ग्रोथ जिसको कहते हैं हुई। करियर ग्रोथ होता है पोजीशंस, जो मैंने आपको हायरार्की बताई कि हायरार्की सी बनती है कि आप पहले टीजीटी या कुछ रहते हैं या फिर पीजीटी बनते हैं, तो करियर ग्रोथ हुई। उसके लिए एक चीज जो आई फेस्ड वाज दैट मुझे क्लास 6 दे दी गई पढ़ाने को, और 6 स्टैंडर्ड पढ़ाना बहुत मुश्किल लगा मुझे, पर ये समझ में आया कि अगर हम ऐसे ग्रोथ रखेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल नहीं है। कभी नीचे जाना पड़ता है, कभी ऊपर। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। Another thing, if we want our career to progress, is we should be willing to take up academic responsibilities. I became the academic coordinator. Academic coordinator means आप academics में बढ़ना चाहते हैं। Academic coordinator के लिए मुझे स्कूल ने कहा गया आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। So very late, almost in the middle of my career, जाकर के मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एक करियर ग्रोथ ऐसा होता है आप स्कूल ज्वाइन कर लें, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। मैंने इस स्टेज पर आकर के पोस्ट ग्रेजुएशन की, और ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्कूल इज अ ग्रेट प्लेस टू लर्न। आपको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफर की जाएंगी, एक्टिविटी इंचार्ज, मैगजीन इंचार्ज, डिसिप्लिन इंचार्ज, हर एक में कुछ सीखने को होगा। कभी मना मत करिएगा, आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है, बिकॉज आप लीडरशिप सीखेंगे, आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स सीखेंगे, एक होल स्कूल की पिक्चर सामने आएगी। तो मैंने ये कुछ लिखे हैं, हर स्कूल में हर तरह की जिम्मेवारियां होती हैं। कई चीजें हैं जो आपको आउटसाइड ऑफ योर सब्जेक्ट, आई कॉल देम एसेंशियल एज वेल एज ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी तो है ही, उसके अतिरिक्त है आपके सब्जेक्ट पे, पर ये बहुत एसेंशियल है। उनमें से है टेक स्किल्स। आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल मोर। रिसर्च कैसे करते हैं, बच्चों को आपको सिखाना है रिसर्च कैसे करते हैं। और टेक के बिना अब तो आई थिंक आई स्टॉप राइट हियर अबाउट टेक स्किल्स, बिकॉज द फैक्ट कि हम आप बात कर रहे हैं और मैं टीचर होकर आपसे ये बता पा रही हूँ, इट जस्ट सेज कि टेक स्किल्स कितना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। मेरी ग्रोथ का कारण यही था कि मैं मैथ्स टीचर होते हुए भी अंग्रेजी बोल लेती थी और बातचीत कर लेती थी। तो ये आपकी एसेंशियल स्किल आ गई। तो अगर आप टीचर होने के साथ साथ, यदि आप, क्योंकि आपको पेरेंट्स से भी बात करना है, आपके स्कूल में पब्लिशर्स आते हैं, आप उनको से भी बात करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी प्रेजेंस कैसी है, ये चीज एक ऐसी चीज है जिसपे आपको काम करना चाहिए। करेक्ट शब्दों का चयन, यू शुड ऑलवेज हैव इनफ वर्ड्स। जब वर्ड्स नहीं होंगे, तो हम बात कर रहे थे तो फिर लाइक फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज से गुस्सा झलकता है या फ्रस्ट्रेशन, पर आपके पास सही वर्ड्स होंगे ना, वो बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। रिपोर्ट राइटिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस, डोंट अंडरमाइन दी स्किल्स प्लीज, ये आपकी ग्रोथ में बहुत जरूरी है। इंटरपर्सनल स्किल्स, टीचर कम्युनिटी रेस्ट्स ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स, how you work as a team, because there's a whole lot of staff you're working with. आप PE टीचर से इंटरैक्ट करेंगे, आप काउंसलर से इंटरैक्ट करेंगे, प्रिंसिपल से आपकी कैसा रिश्ता रहता है। अगर आप हमेशा झुंझलाए हुए रहेंगे और आप रूखा बोलेंगे या जो भी, तो वो चीजें मैटर करती हैं। बिकॉज ये बहुत ऑब्जेक्टिव ग्रोथ नहीं होती, ये होती है हाउ योर सीनियर्स परसीव यू, आप कैसे दिखाई देते हैं अपने सीनियर्स को। और 6 टीचर्स में से कोई एक ही आगे बढ़ेंगी, तो हाउ कैन यू बी दैट पर्सन? These are the skills. So organizational skills, your multitasking skills, and mindfulness. No matter how much I say, you have to be very mindful. You can't let go. आप अपने टेम्पर को, अपने शब्दों को, अपने एटीट्यूड्स को, आपके जो बच्चों के लिए रिस्पॉन्सेज होते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत माइंडफुली चूज करना है। All these add to your becoming a whole and an effective teacher. It's very important. Teaching everybody does, but teaching effectively is the key. After coming here, after being here, I moved to becoming an academic coordinator, and then various roles, and then
another school, I got the offer to become the headmistress. So बहुत predictable path था. Headmistress, I became that of a middle school and then went on to become the vice principal, and now as I become the principal. So जो लाइफ की लर्निंग्स आई हैं, जो बिगर पिक्चर है कि क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हैं एक करियर में. इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर क्लास में आपको कोई देख नहीं रहा होता, पर आपको बच्चे देख रहे हैं और आप अपने आप को खुद देख रहे हैं. एक टीचर के लिए इंटेग्रिटी ये एक अनमॉनिटर्ड सेक्टर भी है, बिकॉज सिर्फ रिजल्ट्स मॉनिटर होंगे. सो योर इंटेग्रिटी हैज टू बी देयर. डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट. टीचर्स कहाँ एक शॉर्टफॉल आ जाती है, हम एक फ्रेमवर्क मान लेते हैं कि जो बच्चे कम बोलते हैं, जो हमारी बात मानते हैं, जो एक बार में समझ जाते हैं, जिनकी लिखाई अच्छी होती है, वो परफेक्ट है. आप सबको वैसा ही होना है. नहीं, हर बच्चा अलग है, उसके सीखने का तरीका अलग है और बहुत अच्छा है. हर बच्चा बहुत अच्छा है. तो डाइवर्सिटी है उनकी लाइक्स डिसलाइक्स में, उनकी लर्निंग स्टाइल्स में, उसको रिस्पेक्ट करिएगा. चाइल्ड सेंट्रिक होना ये नया शिफ्ट है. पहले होते थे सिर्फ टीचर पढ़ा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू से बताया कि हर पॉलिसी, हर विजन, इस पोजीशन पर आकर मुझे लगा कि मैं एक ही कसौटी है, इज इट चाइल्ड सेंट्रिक और नॉट. देन यू नेवर गो रॉन्ग. तब आपके ना पढ़ाने का तरीका, सब कुछ बदलेगा यदि आप बच्चे को सेंटर बना करके रखेंगे. एंड अबव एवरीथिंग, a school is only as good as its teachers. That is the field that I want to, work on. And now in this phase of my career, if I'm talking about myself, but otherwise, agar teachers empowered हैं, trained हैं, compassionate हैं, तो ही वो स्कूल आगे बढ़ सकता है. They are the bricks on which, they are the foundation, on which a school rests. So what are the essential qualifications? So this was any questions that you have, I will be happy along with my team of Praveenji to take them up later. Please give me a heads up, someone, if you think I'm lagging on time. And so the essential qualifications. The first one is DLED. DLED is offered by the SCRTs, which is जो NCRT का state versions है, वो भी DLED course होते हैं. Private institutions भी DLED देते हैं. नेट पर भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी. कई आप लोगों में से कर ही रहे हैं. ये 2 साल का कोर्स है. इसमें एलिजिबिलिटी है प्राइमरी क्लासेस पढ़ाने की, which means classes nursery KG to class 5 आप पढ़ा सकते हैं with a PRT grade. इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको किसी कारणवश अभी DLED ज्वाइन करना पड़ा है, पर इसके आगे आप क्या कर सकते हैं. A DLED is entitled to do BA and BSc. So while you are doing DLED, you can do, आप BA भी कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, आप BSc भी कर सकते हैं. फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं अपर प्राइमरी. अपर प्राइमरी मिडिल स्कूल को कहते हैं, क्लासेस 6 to 8 को. So that is a growth chart that you can take up. And इसके बाद आप B.Ed भी कर सकते हैं, distance learning से भी B.Ed हो जाता है. So DLED can do a BA, BSc, follow it up with a B.Ed, and then of course there is no stopping. You can continue with your education. That's the beauty of education sector also. The BLED course is the DLED, but it's a degree course. ये डिग्री कोर्स है, ये 4 साल का है. ये 12 के बाद ये एक तरह से BA और B.Ed कंबाइन है. और इसको अगर आपके पास BLED है तो आप 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा सकते हैं. नर्सरी टू 8 आप कोई भी क्लास पढ़ा सकते हैं. और जो BLED होते हैं वो M.Ed करके डायरेक्टली, BLED डायरेक्टली M.Ed करके कॉलेज टीचिंग में जा सकते हैं. एंड देन PhD कर सकते हैं, MA कर सकते हैं. So those are the, you don't have to stop if you've done a BLED. यदि आपने BA किया हुआ है संस्कृत में, या अगर संस्कृत में BA करते हैं उसको शास्त्री कहते हैं. अदरवाइज शास्त्री भी एक ग्रेजुएशन डिग्री है. 2 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है. अगर आपने BA किया है, BSc किया है, MA किया है, MSc किया है, तो शास्त्री किया है या आचार्य किया है, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है B.Ed के लिए. अगर B.Ed संस्कृत के एक स्पेशलाइजेशन में होता है तो उसको शिक्षा शास्त्री कहते हैं.
पर मेन सब्जेक्ट्स वही सेम रहते हैं। इनके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में भी होता है। आप फुल टाइम डिस्टेंस से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं बीएड करने के। तो यदि आप ऑलरेडी टीचिंग में हैं, बीएलएड डीएलएड कर रहे हैं, तो आप बीएड उसके बाद भी कर सकते हैं। और आपने बीएड किया है एमए के बाद, तो आप पीजीटी कर सकते हैं, विच मीन्स क्लास 11 एंड 12। एंड अगर नहीं ग्रेजुएशन किया है तो आप क्लास 10 तक पढ़ा सकते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड सा लग रहा है, लेकिन इसीलिए स्लाइड पर लिखा है, और ये इंफॉर्मेशन आपको नेट से भी मिल जाएगी, आप Q&A में भी पूछ सकते हैं। ये मैं अपना जर्नी जैसे बता रही हूँ। यदि बीएड किया है और आप पीजीटी हैं, आप उसके बाद भी काफी कुछ कर सकते हैं। ये जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर हैं, मैं उनके लिए छोड़ूंगी, दैट शी विल बी टेलिंग यू ऑल दिस। सीटेट एक कोर्स, एक एग्जामिनेशन है, कोर्स नहीं है, एग्जामिनेशन है जो क्लियर करना जरूरी है। यदि सीटेट आप सीबीएसई वाला करते हैं, तो आप को केंद्रीय विद्यालय और सीबीएसई स्कूल्स के लिए सीटेट जरूरी है। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन किए गए स्कूल्स करना चाहते हैं, तो टीईटी जरूरी है। सो दो तरह के होते हैं, सीटेट या स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा जॉब है करना है। इट्स जस्ट अ क्लियरिंग टेस्ट, इट्स अ वेरी बेसिक टेस्ट, एंड ये एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। मैं लास्ट पार्ट, क्योंकि अब टेबल के दूसरी तरफ बैठी हूँ और आप सिलेक्शन करना होता है टीचर्स का, तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है व्हेन यू अप्लाई। एप्लीकेशन के अलग अलग प्रोसेसेस हर स्कूल के होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का अलग होता है, प्राइवेट का अलग होता है। डेमो लेसन हर जगह दिया जाता है। जब आप एक डेमो लेसन, डेमोन्स्ट्रेशन लेसन आप देने जाते हैं, तो मेरे तजुर्बा रहा है, कई लोग वैसे ही आ जाते हैं कि ये चैप्टर हमें आता है, पढ़ा लेंगे। ये गलती मत करिएगा, तैयारी करके जाइएगा। तैयारी में लेसन और कैसे पढ़ाना है, लेसन प्लान लेकर, हमेशा हाथ में आपके लेसन प्लान होना चाहिए जब आप डेमो के लिए जाएं, खाली हाथ नहीं। आप कैसे प्रेजेंटेबल हैं। कई बार होता है कि अगर आप फीमेल टीचर हैं, तो आपका दुपट्टा लटक रहा है, पाँव में आ रहा है, आप संभाल नहीं पा रहे, तो आपकी टर्न आउट नीटनेस बहुत जरूरी है। ये एक क्राइटेरियन है। आप बातचीत कैसे करते हैं, आपका डिक्शन सही है, आपकी आवाज का थ्रो सही है। यदि आप आगे बोल रहे हैं और आपकी आवाज ही क्लास तक नहीं जा रही, वो टीचर क्या जिसकी आवाज बुलंद ना हो। तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और आप अपनी बात ठीक से कह पाते नहीं। द क्वालिटी ऑफ योर प्रेजेंस, इससे मेरा क्या मतलब है, कई बार होता है टीचर है कोने में, पता ही नहीं चल रहा टीचर खड़ी है कि नहीं। तो एक टीचर की प्रेजेंस, उसके लिए जरूरी है आप सेंटर में, कहीं जाते ही सेंटर में खड़े हो, आप बोर्ड को कवर करके ना खड़े हो, आपकी प्रेजेंस में एक प्लेजेंटनेस हो जिससे बच्चे का पढ़ने का मन करे। आप भी अगर यदि कंफ्यूज्ड या नर्वस लगेंगे, तो फिर यू विल बी गिविंग। सो व्हाट इज द क्वालिटी of your presence in class? These are the things that you must take your demo lesson very, very seriously. As much as your CV counts, that much your demo lesson also counts. So I will not stop sharing, but thank you so much. And there is another aspect of teaching, so I'll hand over the mic, so to say, the virtual mic to Mr. Praveen Sharma. He works in the social sector, and his kind of work ensures that no child in the country gets left behind. So Praveen ji, please. There is a video, you have to just run that one. Sorry, yeah. There is one video. Yeah. No, it's not playing, Shailesh. The video is not playing.
Is it playing now? May I continue? No, it's not playing. Praveen ji, do you have the video? Should I transfer the host to you? I'm having the video, but anyway. I will just bring it. Please give me a minute. Okay. Is it playing now? No, it's not playing. So anyway, what I'm doing, जो भी बतानी है ना, उस वीडियो में I'm just repeating it. Let me transfer the host to you, Praveen ji. No, I'm not having the link right now because I'm connected to the mobile. So that's I shall do it. 1 minute. Does it play now? Yeah, the sound is not coming. या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर कर रहे हैं तो आपके okay? लिए एक स्कोप है जो कॉर्पोरेट की दुनिया में भी है। कॉर्पोरेट की दुनिया में आज की तारीख में मोस्टली जितनी भी छोटी या मध्यम दर्जे की या बड़े दर्जे की भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें एक डिपार्टमेंट है जिसे कि हम लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, कई जगह पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है कुछ जगह पे एचआर के अंतर्गत डायरेक्टली आती हैं, कुछ जगह पे ये एक इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती हैं। जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होता है इसमें बेसिकली 5 तरीके की ट्रेनिंग की जाती है। ऑनबोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन, बेसिकली इसके बारे में अगर डिटेल जानना चाहेंगे तो आप लोग गूगल करेंगे तो इसकी पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। ये बेसिकली टेक केयर किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो MBA इन HR या फिर कुछ हद तक जूनियर लेवल के भी लोग जो अगर BBA HR में स्पेशलाइजेशन वो भी करते हैं। कॉम्प्लायंसेस ट्रेनिंग का मतलब ये हो गया जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, एथिक्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग होती है। तो इसमें बेसिकली उन लोगों को ही इन्वॉल्व किया जाता है जो कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में पुराने लोग हैं। कई जगह पे कुछ ट्रेनिंग्स में जो हैं बाहर से भी थर्ड पार्टी को भी हायर किया जाता है। तीसरा जो ट्रेनिंग होता है वो हार्ड स्किल्स ट्रेनिंग होता है जो कि टेक्निकल रिलेटेड होता है या फिर जो हमें काम करना है उससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है उसे हार्ड स्किल्स ट्रेनिंग कहा जाता है। एक जगह पे हो सकता है कि प्रोडक्ट मुझे कैसे बनाना होगा, तो अगर वो टेक्निकल डिपार्टमेंट का अगर है वो फिर जा कर के टेक्निकल ट्रेनिंग होगी। लेकिन अगर वो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, अगर वो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो ट्रेनिंग, इसमें जो है आप जो BA इन ह्यूमैनिटीज़ हैं और B.Ed वाले बंदे हैं इनके लिए बहुत बड़ा स्कोप होता है। तो चौथा पार्ट हो गया कि प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की ट्रेनिंग होती है। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की ट्रेनिंग में जिस तरह से प्रोडक्ट का USP क्या है, प्रोडक्ट को कैसे बेचें, किस तरीके से हम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करें। जब इंटरेक्शन की बात आ जाती है तो सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग हो जाती है। तो 5 तरह की ट्रेनिंग होते हैं। कौन कौन? ऑनबोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन, कॉम्प्लायंसेस ट्रेनिंग, हार्ड स्किल्स की ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की ट्रेनिंग। तो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की जो ट्रेनिंग होती है डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सेल्स डिपार्टमेंट का है, पोस्ट सेल्स डिपार्टमेंट का है, कस्टमर हैंडलिंग हम किस तरीके से करते हैं, ये जानिए किस तरीके से हम कंप्लेन को सुनते हैं। जो आप ट्रेनिंग आप देते हो बेसिकली इसमें जो होता है वो नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग होता है कि प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की USPs के बारे में होता है, प्रोडक्ट को हम किस तरीके से प्रोसेस किस तरह, कस्टमर मेरे पास में कर कोई कॉल करता है तो मैं उस कस्टमर को के क्वेरीज को किस तरीके से हैंडल करूँ। वो हो सकता है कई बार ऑनलाइन मैसेजिंग के थ्रू भी हो सकता है। तो इन जो स्टाफ ये सब काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देने की जो ज़रूरत होती है वो कौन कराता है? जिनकी की ट्रेनिंग देने की क्षमता अच्छी हो, जो क्राउड मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकता हो, जो लोग जो सब्जेक्ट को समझ करके समझा सकता है। और बेसिकली जो आप अगर BA और B.Ed कर रहे हैं तो ये एबिलिटी आप में होगी ऐसा माना जाता है। और मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने देखा है कि जो लोग भी BA B.Ed से आए थे और जिन्होंने भी ट्रेनिंग में
जिन्होंने मेरे साथ काम किए हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल एंड दे आर राइट नाउ ऑल्सो दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो वो आप भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है कंटेंट क्रिएटर एंड डेवलपर का भी आप काम कर सकते हैं, जिसमें कि अगर थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी आपके अंदर में है तो कंटेंट क्रिएटर एंड डेवलपर ना, ये सबसे जो मेजर रिक्वायरमेंट आता है वो कंटेंट ट्रांसलेटर की आती है, और कस्टमाइजेशन और कस्टमाइज़ करने की जो लोकल लैंग्वेज में। और इसमें जो एक टीचिंग लाइन से जो बंदा आता है उसमें बहुत अच्छी ग्रिप होती है चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, गलत कहाँ है किस तरीके से। मैक्सिमम जो कंटेंट बनते हैं वो अंग्रेजी में बनते हैं, हिंदी में रेयरली बनता है। तो और अंग्रेजी से जब उसे हमें लोकलाइज करना पड़ता है, रीजनलाइज करना पड़ते हैं, मैक्सिमम लोग गूगल में डालते हैं और उसे ट्रांसलेट करके भेज देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, दिक्कतें आती हैं। तो इसी वजह से आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि उसको ट्रांसलेट जो करना है उसको लोकल लैंग्वेज में किस तरीके बताई जाए, ये काम आप कर सकते हो। साथ साथ आपको प्रूफ रीडिंग का भी एक काम जो है वो स्कोप आता है। सिमिलरली इसी तरीके का स्कोप NGOs एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी मिलती हैं, क्योंकि उसमें जो काम होते हैं सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, डायरिया कंट्रोल के ऊपर होते हैं। बेसिकली आप लोगों के बैकग्राउंड के भी लोगों को प्रेफर किया जाता है। अगर एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं अगर किसी भी NGO के, तो आपको वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपके लिए देखा जाए तो एक सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं बल्कि कॉर्पोरेट की दुनिया में भी आपके पास बहुत अच्छे स्कोप है। आपके सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो ये है कि आपका बिहेवियर और एटीट्यूड कैसा है। दूसरा, आप कितना ज़्यादा सीखते हैं और आप कितना ज़्यादा किसी को सिखा सकते हैं कम से कम बोलकर। धन्यवाद। Thank you, Praveen ji. Shailesh ji, you're there? Shailesh ji, I think you're on mute. Yes. Can you see my screen? Yes, we can see. So I will now take you to our next guest. 1 minute. I have to. I'm sorry for this. I will just take you to another video where I will introduce to you Dr. Haneed Gandhi. Dr. Haneed Gandhi is our third guest speaker, and she could not be available for this, and hence we have recorded her speech, and that is what I am going to be sharing with you. If you'll just give me a minute, because can you be the co-host for me, somebody? Because I think meanwhile, if anybody has questions, they can ask because we have less time now. So we open the forum for questions also. I think all of you have heard Shailesh ji and Praveen ji, and you have any questions related to teaching as a career, teaching admin as a career, or even how do you get into the corporate as a career? So those questions you can definitely ask. are you able to see this, please? Yes, yes. Good afternoon, good evening, good morning, everyone. My name is Professor Haneed Gandhi, और I teach in the Faculty of Education, जो आप सब commonly जानते होंगे CIE के नाम से, Central Institute of Education, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। और इस समय मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल रही हूँ। मेरे पर उत्तरदायित्व है डीन एडमिशंस होने का, यानी कि डीन प्रवेश शाखा दिल्ली विश्वविद्यालय। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा होता अगर हम ये बात
Not playing Shailesh. I think we can take questions from the audience. Otherwise, if I have some questions, which I can ask on the behalf of. Yeah, please go ahead. The students. Yeah. So one question is, in terms of the audience want to know is that what kind of it is usually considered that starting salaries are less in schools. Is that correct? And what are the options if they want to get into the government schools as teachers? Those two questions I have first. Shall I take this question? Yes, Praveen ji, or you will take that? Yes, you can take it. The thing is that initially that is true. जब आपके पास experience नहीं होता तो salaries कम मिलती हैं, और प्राइवेट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी बिना एक्सपीरियंस के इतना लेते नहीं है. सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप पहले प्राइवेट स्कूल्स में काम करें एंड कम सैलरी मिलती है, एनीथिंग अप टू 15,000 20,000 भी मिलती है, एंड यू स्टार्ट वर्किंग एट दैट टाइम. साथ ही साथ आप अपने आप को एम्पावर करें, आप अलग कोर्सेज करें, आपका अपना सीवी स्ट्रेंथन करें. कई बार क्या होता है कि सीवी के चलते अगर आपका सीवी स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे अगर मेरे पास कोई टीचर आती हैं एंड एक्सपीरियंस नहीं है पर उनका सीवी बहुत स्ट्रॉन्ग है. अब टीचर का सीवी कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? टीचर का सीवी तब स्ट्रॉन्ग होता है जब आपने बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज की हुई है, एंड अगर को करिकुलर एक्टिविटीज की हैं तो आपको शायद कैलीग्राफी आती है, आपको शायद आर्ट एंड क्राफ्ट आती है. So that is one thing which makes your CV stronger, and that can make up for even the your lack of experience. पर जो order रहता है पहले private schools में, yes, थोड़ी कम salary से, but then you can always move up, and government schools में तो बहुत दिनों बाद नौकरी आती है, but private schools अच्छी salaries भी देते हैं. तो जैसे जैसे फिर आपका experience बढ़ेगा, पहले आपको contract पे रखते हैं, जब आपके पास थोड़े साल का एक्सपीरियंस हो जाता है एंड यू कैन टेल ऑफ आपने ये काम किया और स्कूल में ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, आपकी प्रेजेंस फील हुई स्कूल में, तब आपको ग्रेड पे डाला जाता है. उसके बाद प्रोबेशन पे रहते हैं एंड देन ऑफ कोर्स द स्काई इज द लिमिट, फिर आपको परमानेंट किया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां आप पहले पहले काम करें, यू मेक अ मार्क. Your passion for teaching should show कि आप कितने committed हैं. That is the qualities that as an administrator मैं भी देखती हूँ और मेरे colleagues भी देखते हैं कि like एक होता है उनकी body language भी. जब आप as a last resort teaching के लिए आते हैं तो आपकी body language में दिख जाता है, पर आप जज्बे के साथ आते हैं, आप happily आते हैं, तो very soon 1 साल 2 साल में आप अपना मार्क बना सकते हैं, and then you can move to schools. See, schools हर लेवल के होते हैं. That is also there about teaching profession. कई schools छोटे होते हैं, exploitation भी होती है, कम salaries देते हैं, but जो 7th पे commission आया है उसके हिसाब से TGT की starting salary 65,000 per month, 60,000 करीब per month है, which is like which the moment you go on grade you can do that. Public schools भी देते हैं. Now, Praveen ji, if you'll take the next question, I will be able to locate the slide. Yes, no issues. यहाँ पे मैं बता दूं, जो grade जो payment होता है ना, उसमें आपको as a PRT में जो आपका सैलरी गवर्नमेंट जॉब में होगा, वही सेम चीज प्राइवेट स्कूल्स में भी होता है. क्योंकि आज की तारीख में ये मैंडेटरी हो गया है कि हर एक स्कूल्स को नॉर्म्स फॉलो करना, और CBSE इंश्योर करती है कि तो पेमेंट जो है हर एक जगह का एट पार हो. सो अगर मान लीजिए कि आप जब ग्रेड में जाते हैं एज अ PRT आप ज्वाइन करते हैं, तो टोटल जो सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी आपकी होती है लगभग 61,800 के आसपास होता है. जब आप फिर जाकर प्रमोट होते हैं TGT में, या फिर डायरेक्टली आपकी हायरिंग अगर TGT में होती है, तो आपकी जो सैलरी होगी वो करीब करीब जो है ग्रेड के बेसिस पे 77,000 के आसपास होता है. आप अगर MA कर लेते हैं और आप PGT में जाते हैं तो फिर जाकर के 81,000 के आसपास आपकी सैलरी होती है. सो ये रहा. आई थिंक दैट आशुतोष आई हैव आंसर्ड बोथ द क्वेश्चंस. प्रवीण जी, एक क्वेश्चन और है मेरा कि अगर कोई कॉलेज में जाना चाहता है एज अ लेक्चरर या प्रोफेसर,
तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए, पीएचडी करनी पड़ती है या फिर क्या रिक्वायरमेंट होता है? हाँ, जैसे कॉलेज का जो रिक्वायरमेंट होता है पीएचडी का तो होता ही है, इसके साथ साथ में आप सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं देन आई थिंक हनीत जी's video will answer this question. Can you see the screen now? Yes. Yeah, so that will be the answer to this question. Professor Haneet Gandhi और I teach in the फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जो आप सब कॉमनली जानते होंगे CIE के नाम से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। और इस समय मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल रही हूँ। मेरे पर उत्तरदायित्व है डीन एडमिशन होने का, यानी कि डीन प्रवेश शाखा दिल्ली विश्वविद्यालय। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा होता अगर हम ये बातचीत रूबरू होकर कर रहे होते, लेकिन क्योंकि मेरी कुछ प्रायर एंगेजमेंट्स हैं, पूर्व कुछ मेरे काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपके इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाई, इसीलिए रिकॉर्डेड मैसेज भेज रही हूँ। कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। आपके सामने मेरा शायद बायोडेटा तो पढ़ा ही गया है कि मेरा बैकग्राउंड जो है मैथ से था, उसके बाद फिर मैंने PhD इन मैथमेटिक्स एजुकेशन की। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या बात करूं, आई डोंट नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट वंस जर्नी, बट व्हाट आई कैन से टू ऑल द पीपल हु आर हियर, to all the aspirants who are dealing in the field of education is that don't restrict yourself only to school teaching. आप लोग शायद अभी सब B.Ed कर रहे हैं और अभी आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद तो हम एक स्कूल में चले जाएंगे और स्कूल लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे और पढ़ाने लग पड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे एवेन्यूज अब खुल गए हैं विद रिस्पेक्ट टू टीचिंग ऑल्सो। जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अब करिकुलम मेकर्स भी बन गए हैं। आपको सबसे अच्छी बात जो है आप लोगों के साथ है कि आप उस एज में हैं जब आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज घर बैठे ही मिल रही है। सबसे पहले तो मैं ट्यूशन को बिल्कुल नहीं प्रमोट कर रही, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्यूशन देंगे, लेकिन आप अगर सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ लेंगे तो आप इसके बाद M.Ed कर सकते हैं। M.Ed भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में शुरू हो चुका है। इस समय जब आप एजुकेशन की फील्ड में आ रहे हैं, अगले 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हाल ही में 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये शिक्षा नीति 34 ईयर्स के बाद, 34 सालों के बाद शिक्षा नीति ये लॉन्च की। मतलब 86 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी और उसके बाद उसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर इतना काम होता रहा। इतने सालों बाद अब जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है और अगर मान ले कि 20 साल तक ये चलेगी तो वो आपका प्राइम एज होगा। अगर आप लोग अभी 18, 19, 20, 21 साल के हैं तो आप मान लीजिए 40 तक जब आप अटेन करेंगे, 40 to 45 तक, जो ऑलमोस्ट लाइक अधेड़ उम्र होगी हम लोगों की जैसी, तब तक के लिए आपके पास कितना सारा काम है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम हो रहा है। सबसे पहले अगर बातचीत करें तो NCERT में ही बहुत काम हो रहा है। NCERT में रिसर्च स्कॉलर्स ढूंढे जा रहे हैं। NCERT में जरूरत है लोगों की जो एजुकेशन के क्षेत्र में आ सकते हैं। इसी तरह और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि SCRTs, आपके पास SCRTs होंगे जहां पर आपकी जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे स्कूल बोर्ड्स को जरूरत है करिकुलम बनाने की। जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर जो ये चेंज हो जाएगा, आप लोग जानते हैं इस साल से, मतलब अगले साल से 5+3+3+4 का फ्रेमवर्क जो है आ जाएगा। यानी अब जो हमारा स्कूल एजुकेशन होगा वो 10+2 के पैटर्न पे नहीं होगा। फाउंडेशनल ईयर्स 5, फिर 3 इयर्स, फिर 3 इयर्स ऑफ मिडिल और 4 साल 9 से लेकर 12 तक। तो आप सोच सकते हैं कितना करिकुलम चेंज होगा। पहले 5 साल का करिकुलम एक कोहोर्ट में होगा, फिर 3 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का। इसलिए हमें स्पेशलाइज्ड टीचर्स की जरूरत है, हमें स्पेशलाइज्ड टीचर एजुकेटर्स की जरूरत है।
तो अगर आप मान लीजिए अगर आपको प्राइमरी स्कूल की किताबें प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ काम करना पसंद है तो आप 5 इयर्स की जो एरिया है उस पर स्पेशलाइज कीजिए, उसके बारे में और पढ़िए। अगर आप नेक्स्ट 3 इयर्स मिडिल स्कूल में काम करना चाहते हैं तो वहां के बारे में और जानिए। अगर आप हायर एजुकेशन में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आपका किसी भी विषय में बहुत अच्छा रुझान है, जैसे कि मेरा मैथ्स में बहुत अच्छा था, मैंने मास्टर्स की मैथ्स में, और अब मैंने उसके बाद मैथ्स में पीएचडी करने की सोची, मैथ्स एजुकेशन में पीएचडी करने की सोची। तो अगर आपको किसी विषय में मास्टर्स डिग्री की हुई है तो आपसे मैं गुजारिश करूं कि आप उस ब्रैकेट में जाइए 9 to 12 तक। हमें बहुत जरूरत है, आगे 10 सालों में एजुकेशन सेक्टर जितनी रैपिडली बढ़ेगा आप इसको सोच भी नहीं सकते। जैसे ही गवर्नमेंट खत्म करेगी, गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाएंगी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए होंगे करिकुलम मेकर्स, करिकुलम बनाने वाले, किताबें बनाने वाले, टेक्स्ट बुक बनेगी। आप सोच नहीं सकते कितने ही पब्लिशर्स जो है कितनी ही तरह की किताबें लेकर आएंगे। एनसीईआरटी की किताबें आते ही बहुत सारे लोग चाहिए होंगे जो इन किताबों पे काम कर सके, वहां आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिसर्च में आना चाहें तो आप किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाकर पीएचडी के बारे में बात कर सकते हैं। आपको एक पेपर क्लियर करना पड़ेगा, उसका नाम है नेशनल एजुकेशन टेस्ट। ओ सॉरी, बाय द वे मैं बताना भूल गई, ये सारे नेशनल एजुकेशन टेस्ट वगैरह ये एमएड के बाद। तो बीएड के बाद आप जा सकते हैं स्कूल टीचिंग में और इन सब में। इसके बाद लेकिन अगर आप एक टीचर एजुकेटर बनना चाहते हैं तो आपको एमएड करना पड़ेगा, जो फिर 2 साल के, लेकिन इट्स वर्थ डूइंग इट। एमएड करने से मेरा नजरिया ही बदल गया था लाइफ की तरफ और एजुकेशन की तरफ। तो आप एमएड करिए। एमएड के बाद आपके पास जो फील्ड्स खुल जाती हैं वो है आपके टीचर एजुकेटर बन सकते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आ सकती हैं। कई जगह पर तो मास्टर्स यानी एमएड जो है जॉब का भी हिस्सा बना हुआ है, और बहुत सारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एमएड को प्रमोट करते हैं। लेकिन मैं प्राइवेट अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, अगर आपका मन करता है क्रिएटिव माइंड के, अगर आपको रिसर्च में करने का मन है तो आप मास्टर्स के बाद पीएचडी इन एजुकेशन में आ सकते हैं। पीएचडी एजुकेशन में बहुत तरह की, अगर आपको किसी जेंडर सेंसिटिव काम में करना है कि लड़कियां जो है मैथ्स में कमजोर क्यों मानी जाती है, लड़कियों के अंदर भय क्यों भावना क्यों है, या किसी सोशल सेक्टर के अंदर काम ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं अपने ही क्षेत्र में अपने ही गांव में उसको केस स्टडी बना के पढ़ना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि पढ़ाई जो है वो मिशनरी स्कूल्स में ज्यादा हो रही है। ये सब एरियाज एजुकेशन के अंदर आते हैं, ये सब एरियाज आते हैं पीएचडी के अंदर। पीएचडी करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस गुस्सा ऑफ कोर्स हो सकता है, थोड़ा सा समय ले ले या थोड़े से परिश्रम करने की जरूरत पड़े। पीएचडी में एंट्रेंस लेने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप नेशनल एजुकेशन टेस्ट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट का पेपर दें और उसमें उसको क्वालिफाई करें, वो आपका सिलेबस एमएड के बेस पर होता है। और अगर आप वहां से नहीं कर सकते तो अभी तो ये भी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज अपनी तरफ से भी इंटरव्यू या एंट्रेंस टेस्ट कराती है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी कराती है, उसके थ्रू फिर आप इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में अगर आपका क्लियर हो गया तो आप इसमें पीएचडी के लिए आ सकते हैं। पीएचडी में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है कि किस लिए आप पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी करने का एक अलग ही नशा है। जब मैंने पीएचडी की तो आई वाज सो हैप्पी दैट आई वाज कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू सोसाइटी। पीएचडी मींस यू आर रीलुकिंग, रिसर्चिंग, यू आर कमिंग आउट विद अ थ्योरी। इमेजिन, मतलब मेरी नाम की एक थ्योरी बन रही है। दिस इज सो एलिटिंग, इतनी आपको प्राउड फीलिंग होती है, इतनी आपको खुशी होती है कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो पीएचडी करने का बस यही एक नशा है, एक मजा आता है रिसर्च करने में। फिर उसके बाद आप अगर टीचर बन जाएंगे या टीचर एजुकेटर बन जाएंगे, जैसे कि मैं बन गई, अब मेरे साथ पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। सो रिसर्च करने में या टीचर एजुकेशन बनने में जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है या मजा आता है वो यही है कि आप कुछ नया ढूंढ रहे होते हैं। पढ़ाई ऑफ कोर्स बहुत होती है, बट वो पढ़ाई भी क्योंकि लिंक्ड होती है और आपको मजा आ रहा होता है तो करने में बड़ा मजा आ रहा होता है। आप थ्योरीज लिंक कर रहे होते हैं, आप डिबेट्स ढूंढ रहे होते हैं, आपका माइंडसेट बड़ा बन जाता है कि ये ही ऐसे ही क्यों पढ़ाया जाए, ऐसे क्यों ना पढ़ाया जाए। एक नई आइडिया लगा के देखते हैं कि अगर मैथ्स ऐसे पढ़ाई जाए तो कैसे होगी, एक नया काम करके देखते हैं। So that is what is about research. So you can also come for research. You can also do research in your life.
टीचिंग प्रोफेशन में क्योंकि आप सेम करिकुलम सेम चीजें हर साल पढ़ा रहे होते हैं, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने की बहुत जरूरत है। अगर क्लास 7th को हर साल मुझे इंटीजर्स पढ़ाना पड़ेगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो आप कुछ उसी के अंदर नया नया ढूंढते रहेंगे, तभी आपको मजा आएगा और आपके बच्चों को मजा आएगा। तो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करिए। आपका हमारा जो प्रोफेशन है सबसे बढ़िया यही है कि हम यंगस्टर्स के साथ अटैच हैं। हमारे सामने हमेशा वो आंखें आती हैं जो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करती हैं। मेरे भी स्टूडेंट्स जो है मेरे पास जब मिलते हैं तो दे आर ऑल यंगस्टर्स, दे आर टीनेजर्स। व्हेन दे मीट मी आई बिकम अ टीनेजर, आई लर्न सो मेनी थिंग्स, सो दैट डजंट मेक मी ओल्ड। आप लोग अगर छोटे बच्चों के साथ जाएंगे तो वो आपको इतना प्यार देंगे कि आपको उससे लगेगा कि मुझे इनके लिए कुछ नया करना है। So keep yourself alive, my dear friends, my dear students. Be happy in your life. Just keep yourself, keep that child in you always alive. कुछ भी नया हर साल सीखेंगे ना, तब भी आप 40-20 सालों में 20 तरह के स्किल्स सीख जाएंगे। कैन यू इमेजिन? और बहुत बड़े स्किल्स नहीं कह रही हूँ, डूडलिंग करना सीख जाएंगे, कार्टून बनाना सीख जाएंगे, वो भी छोटी छोटी चीजें हैं। तो बहुत ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़े स्किल कर लिए कि आज हम एवरेस्ट तो नहीं कह सकती, वो भी अब इतना बड़ा स्किल नहीं है, लेकिन कुछ स्किल्स है। बट ठीक है, प्लांट की केयर कैसे की जाती है ये भी एक स्किल है, एनिमल्स की केयर कैसे की जाती है ये भी एक स्किल है। कुछ अपनी लाइफ में करते रहिए। एंड आई विश यू ऑल a very progressive life, a bright future, and my wishes to all of you: do well in your life and be very happy and be very positive in your life. Thank you so much and God bless you all. Thank you. Really a very enriching session, Shailesh ji, Praveen ji, and Dr. Haneed. We are already 10 minutes past 11:30, but I'll just give the last opportunity. If students have any questions, then we can address those questions. I think a lot has been covered in today's session. We will also put this recording on YouTube, on SBA's YouTube channel. And this session was co-hosted by St. Beats. Thanks a lot, St. Beats, the faculty and the students for joining us today. Really, enriching session for all of us. We learned so much. And after this also, I think you get any questions, you can get in touch with us and we will definitely get the answers for you. Again, I thank everybody and say my gratitude. And you wait for the recordings. Will be available in a day or two on YouTube on the SBA channel. Thank you. Thank you. Thank you. We can end the meeting now. Yes. Thank you, everyone.